آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ وہی ہوا جس کی ہم جیسوں کو پوری توقع تھی۔ ٹرمپ نے حسب معمول ترکی میں نیٹو سربراہ اجلاس کی پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ میزبان ترکی کی تعریف، باقی نیٹو اتحادیوں پہ تنقید، اسپین کو تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کی دھمکی، اور پھر ایران سے کیے گئے ایم او یو کے بارے میں کہا کہ اب اسے ختم ہی سمجھیں، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کل ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا ویسے ہی آج رات بھی بنا سکتے ہیں۔ ایران کو تیل فروخت کرنے کی جو اجازت دی گئی تھی وہ بھی واپس لی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ ناکہ بندی کر دیں۔ To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. ایران نے کہا کہ جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے، جھوٹے، پاگل، ٹھیک ہے۔ ٹرمپ کے اس تازہ غصے کا محرک گزشتہ روز عمان کے ساحل کے قریب سے آبنائے ہرمز پار کرنے والے 3 انرجی ٹینکرز پہ ایرانی حملے ہیں، تاکہ جہازوں کو ایران کے منظور شدہ بحری راستے سے گزرنے پہ مجبور کیا جا سکے۔ ان میں سے ایک LNG ٹینکر قطر کا تھا، ایک آئل ٹینکر سعودی تھا اور ایک پہ متحدہ عرب امارات کا تیل لدا ہوا تھا۔ اس ایرانی حملے کے بعد امریکی فضائیہ نے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی IRNA کا کہنا ہے کہ بندر عباس اور بوشہر پہ امریکی حملوں کے نتیجے میں 8 ایرانی فوجی بھی جاں بحق ہوئے۔ بدلے میں ایرانیوں نے بحرین اور کویت پہ میزائل اور ڈرون حملے کیے، مگر ٹرمپ کے ڈرامائی اعلانات کے باوجود امریکہ اور ایران کے مابین ثالثوں کے ذریعے پس پردہ رابطے مکمل طور پہ نہیں ٹوٹے ہیں۔ البتہ قطری اور پاکستانی ثالث کل رات سے اب تک ہونے والی وارداتوں اور غسیلے بیانات پہ ضرور سر پکڑے بیٹھے ہوں گے، بالکل ایسے ہی جیسے 2 ضدی بچوں کے سرپرست بار بار چھڑانے کی کوشش میں اپنے دیگر کام بھول کے جٹے رہتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کی تجزیہ کار ڈاکٹر سنبل خان سے ہم نے گزشتہ ہفتے اسی موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج انہیں ایک بار پھر زحمت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ MOU کی جو کمپنی ہے بہت دیر تک نہیں چلے گی، تو کیا پھر یہ اسی طرح چلے گی؟ حملے اور بیک ڈور چینل ساتھ ساتھ باقی ممالک اور ان کی معیشتوں کا مستقبل بے یقینی کے دھاگے سے اسی طرح لٹکتا رہے گا؟ شکریہ، تھینک یو زرار، تھینک یو وسعت صاحب، آپ نے مجھے جلد ہی پروگرام میں دوبارہ دعوت دی ہے۔ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر۔ دیکھیے، جیسے اب لاسٹ پروگرام میں آئی تھنک زرار صاحب نے جو پروگرام شروع کیا تھا، ان کا سوال جو مجھ سے وہ یہ تھا کہ دیکھیں یہ پیس ہے کہ پاز ہے۔ میرے خیال میں ہم لوگوں کی، میری بھی انکلوڈیڈ، آپ لوگوں کی بھی رائے یہی تھی کہ یہ پاز ہے، لیکن اتنا چھوٹا پاز ہوگا یہ میرا خیال میں ہمیں بھی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ پاز جو ہم ہوپ کر رہے تھے ایٹ لیسٹ نومبر تک چلے گا، جب US کے الیکشنز ہیں، سینٹ کے، کانگریس کے الیکشنز ہیں، ان کے پارٹی الیکشنز ہیں، اس وقت تک ضرور چلے گا، لیکن یہ بڑی جلدی ہی جو پاز ہے یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جنگ کی طرف ہم واپس جا رہے ہیں۔ آئی تھنک دیکھیں جی ہو کیا رہا ہے، ایک تو ہم نوٹ کریں گے کہ یہ جو ٹینکرز پہ اٹیک ہے اور جو ایران نے بار بار تنبیہ کی بہت سارے ٹینکرز کو، یہ اس جو پورا ہفتہ تھا اسپیشلی جس میں فیونرل کا ہفتہ تھا یا جو US کے نیشنل ڈے تھا 4 جولائی کی ایکٹیویٹی سے پہلے ہو رہا تھا یہ سب کچھ، اور یہ ٹینشنز اسی وقت سے بلڈ اپ ہو چکی ہوئی تھیں، لیکن پھر دونوں فریقین میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کیونکہ ایران میں خمینائی صاحب کا بہت بڑا فیونرل ہے، ان کی تیاری تھی، اور وہاں پہ کچھ 4 جولائی کی جو پریپ ہوتی ہے یا پریپریشنز تھیں US میں وہ چل رہی ہیں، تو یہ اتنے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹیک نہیں ہوگا۔ سو یہ میرا کہنے کی یہ مراد ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں MOU کی جو پرابلم آ رہی تھی، اور وہ جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ MOU کا، وہ پوری جنگ کا بھی جو ایشو ہے، اب آ کے ایک طرح سے
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे ये चीज़ पूरी की पूरी फोकस हो चुकी हुई है। पहले तो जब ये जंग शुरू हुई थी इसके मुहर्रकात फ़र्क थे, वो चाह रहे थे किसी तरह इजराइल और यूएस के ईरान की रिजीम चेंज हो, या वो अपना न्यूक्लियर इशू जो है वो बहुत पुराना निगोशिएट हो रहा है वो गिव अप करें, अपने प्रॉक्सीज गिव अप करें। अब पोस्ट वॉर जो बात चेंज हुई है, फील्ड जो एकदम से चेंज हुई है, उसमें ईरान का जो हाथ भारी नज़र आया है इस जंग के बाद। नुकसान उनका भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन जो जंग के बाद उनका एक हाथ भारी पलड़ा भारी नज़र आया वो यही है कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मुज़, जो हुर्मुज़ आबनाए हुर्मुज़ है उसका कंट्रोल। और उसी चीज़ पे MOU भी डिले होता रहा, लेकिन फाइनली जो आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें जो लैंग्वेज है MOU की वो 100% ईरान की जो को फेवर करती है, ईरान का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद करती है। उसमें कहीं भी बाहर किसी मुल्क का जिक्र नहीं है जो इस MOU के ऊपर बातचीत होगी। ओमान का जिक्र है, ईरान का जिक्र है, मैनेजमेंट का जिक्र है। तो वो ट्रम्प साहब ने ख़ुद साइन किया, उसमें सारी पूरी हुकूमत शामिल थी यूएस की। उन्होंने बाकी भी अपने जो दूसरे उनके पार्टनर्स हैं उनको भी इस पर कॉन्फिडेंस में लिया और सब ने मिल के ये MOU साइन किया। लेकिन साथ ही हमने देखा कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का इशू है MOU की साइनिंग के फ़ौरन बाद सामने आ गया और उन्होंने कोशिश करना शुरू की। एक तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रूट बनाई ओमान के एरिया में, यूएस ने भी बनाई, उनके शिप्स लेके वहाँ से उनको ले जाने की कोशिश करते रहे। मकसद यही नज़र आ रहा है कि किसी तरह जो कंट्रोल है, पोस्ट वॉर जो कंट्रोल आया है ईरान के हाथ में, वो उनके हाथ से उस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल निकल जाए, जिस पे ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो चीज़ें आके वहीं पे आके रुक रही हैं। मेरा ख्याल, अपना ये ख्याल है कि जिन वजूहात की वजह से US एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स हुई, इज़राइल की मुखालफत के बावजूद फोर्स हुई है MOU को साइन करने के लिए, वो वजूहात अभी तक वहीं पे वहीं हैं। वो उसमें वहाँ पे जो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, जो उसका इम्पैक्ट US की अपनी जो पॉपुलेशन है उस पे आना, अपने जो उनके जो दूसरे पार्टनर्स हैं US के, यूरोप में पार्टनर्स हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। 25% सारा फ्यूल वहाँ से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के थ्रू गुजरता है। 35% वहाँ पे जो LNG और गैस है उसके थ्रू जाती है, जो वो इन ममालिक में जा रही है। उनका जो प्रेशर आ रहा था वो चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं। कुछ बाकी जो रिसोर्सेज थी वॉर फाइटिंग के लिए, मिज़ल्स की भी कमी हमने देखी है कि वो अभी तक है, वो इतनी जल्दी पुर नहीं हो सकती। तो मेरे ख़्याल में जो बातचीत का आपने जिक्र किया है वो चलेगी। पाकिस्तान भी और कतर दोनों इसमें शामिल थे। एक पॉइंट है ज़रा इम्पोर्टेंट देखने का, आई थिंक बहुत बात जो इस जो MOU के अभी जो हालात आए इससे पहले जो थी वो बहुत ये जिक्र होता रहा है कि कतर भी सालिस है, पाकिस्तान भी मीडिएटर है। कतर और पाकिस्तान दोनों मीडिएशन करते हैं। कतर का समहाउ इन दी एंड हमें रोल ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि पाकिस्तान तो ज़रा पुश बैक हो चुका है, कतर ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन देखें, मेरे ख्याल में ऐसा ये जो अभी जिस तरह अभी ये एकदम से फाइटिंग दोबारा शुरू हुई है उससे तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल उल्टी होती हुई नज़र आ रही है। देखिए कतर और सऊदी अरेबिया और इन ममालिक ने, डॉक्टर साहिबा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कतर का आपने जिक्र किया तो मैं इसी पर पॉइंट पर ज़रा थोड़ा एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ कि देखें शायद फुल फ्लेज जंग दोबारा शुरू ना हो, उसकी वजूहत आपने हमें बता दिए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रम्प है। हम ये भी जानते हैं कि ईरान का जो ट्रम्प कार्ड है वो है आबनाए हुर्मुज़। लेकिन अभी जो हुआ है यहाँ पर कतर के LNG टैंकर पर हमला करना, कतर एक सालिस है। कतर ने अपना वफ्द भी भेजा था आयतुल्लाह ख़ामेनेई के जनाजे में। इस वक्त कतर पर इस तरह हमला करना, माना कि ईरान का हाथ भारी है, लेकिन आर दे ओवर प्लेइंग देयर हैंड इस तरह के अटैक्स करके, ये मानते हुए कि बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ पर वो अपना कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हर शिप, हर क्रॉसिंग पर आपको इस तरह के हिट करने की ज़रूरत है? मतलब ईरान को हिट करने की ज़रूरत है? ये किसी तरह, मतलब एक तरह से एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव नहीं है आपकी नज़र में? जी, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रही थी, बिकॉज़ ये आई थिंक एक नुक्ता है जिसको बहुत समझने की ज़रूरत है। देखिए, कतर का भी सालसी रोल है, लेकिन कतर जो है इसमें एक तरह का फ़रीक भी है, इस जंग का फ़रीक भी है। देखिए, पाकिस्तान का भी सालसी रोल है। पाकिस्तान की भी बहुत एनर्जी डिपेंडेंस है, चाइना की बहुत ज़्यादा एनर्जी डिपेंडेंस है, ईरान पे भी है, आबनाए हुर्मुज़ पे है।
हमने तो अभी तक यूएस वाला जो मीडिएटेड, उनकी मिलिट्री मीडिएटेड रूट इस्तेमाल नहीं किया, चाइना ने तो वो रूट इस्तेमाल नहीं किया है। तो कतर और ये जो दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो ये जानते हुए, वो जो ये MOU साइन हुआ इसमें भी शामिल थी। आप भी जानते हैं ओपनली कतर, सऊदी अरेबिया, स्पेशली कतर तो बहुत फोर फ्रंट पे था इस MOU को साइन करने में। लेकिन वो ईरान को इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि जो उनकी पावर इस्टेब्लिश की है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इससे पहले, इस जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे ईरान ने अपनी रिट नहीं इस्टेब्लिश की हुई थी। इट वाज एन ओपन वाटरवे जिसको पूरी दुनिया ग्लोबल उस वाटरवे को इस्तेमाल कर रही थी। जो उन्होंने एक ही चीज़ इससे अचीव की है, इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद, इतनी लॉस के बाद, जानी लीडरशिप की लॉस के बाद एक चीज़ अचीव की है, उनके हाथ में सिर्फ ये एक चीज़ है, उसको अट्रिशन के तौर पे कम करना, उस पावर को कम करने में यही गल्फ़ ममालिक जो हैं, जो उसमें MOU में भी शामिल हैं, जो अब आप अगर MOU के लैंग्वेज में लिखें तो इसकी कहीं पे भी स्पेस नहीं है कि इस तरह की US मिलिट्री की रूट के अंदर, उनके एविएशन, उनकी एयरफोर्स के अंडर, प्रोटेक्शन के अंडर ये रूट इस्टेब्लिश होगी। और ईरान ने बहुत दफ़ा ये कहा है कि आप ऐसे ना करें, ये चीज़ हमारी पावर, ये MOU में शामिल नहीं है। तो आप मुझे ये सवाल ये उठता है कि कतर अगर इतना ही न्यूट्रल एक्टर है, सऊदी अरेबिया इतना ही इसमें न्यूट्रल प्लेयर है, तो वो ये अभी तक इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, ये किसकी ईमा पे कर रहे हैं, और ये इसको क्या, इसके क्या फ़वाइद निकलते हैं। सो आई थिंक इस वजह से जो लोग ये कहते थे कि कतर का रोल और पाकिस्तान का रोल एक ही रोल है, वो तो गल्फ़ से हैं और वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, यहाँ से आपको डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रही है। यहीं पे आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है कि क्यों पाकिस्तान अभी भी वो रोल प्ले कर सकता है जो कोई और नहीं प्ले कर सकता। आई थिंक यही हमने पाकिस्तान पर अभी हम आते हैं, लेकिन अभी अगर हम अपना हुर्मुज़ की एक और मैं बात करूँ, बिल्कुल ईरान की ये वाहिद लेवरेज है और वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन ऐसे इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि अगर आप बार बार वही चीज़ करोगे तो कम और कम फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर एक लिहाज से क्या ईरान के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं अप्लाई हो रहा? आखिरकार हमने ये भी देखा है कि वो जो ईरान को इस्तिस्ना मिला था फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शंस, उसको भी बंद कर दिया गया और ये एक ज़राए आमदनी होती ईरान के लिए। तो अगर हम एक ज़ाविये से देखें तो शायद ईरान के लिए ये बेहतर होता कि वो अभी एक दो जहाज़ अगर वहाँ से जा भी रहे हैं उनको जाने दो और थोड़ा सा मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का सोचें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के हक़ में होगा कि अगर बाकायदा दोबारा बमबारी शुरू हो जाए। आपका इस पर क्या ख्याल है? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल हक़ में नहीं होगा। और ईरानी जितना वो अंडर प्रेशर हैं और उनकी आवाम जितनी अंडर प्रेशर रही है, और वो तो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन मैं देखें, आपने एक बात की कि वो जो उनको फ़वाइद मिल रहे हैं या जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उनको इसका रिटर्न क्या मिल रहा है? आप मुझे ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो अगर MOU में भी जो देखें, जो चीज़ें वो बहुत लंबी लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस हैं, वो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था कि वो 300 बिलियन का जो उनका जो वो बनेगा, एक फ़ंड बन रहा है उनकी रिकन्स्ट्रक्शन फ़ंड, वो बहुत हवाई चीज़ें हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें, और मुझे उसमें कोई रियलिस्टिक वो कोई प्लान नहीं लग रहा है। दूसरा देखिए, अभी जो मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे जो ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम एंड एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इससे जो ये जो 2 महीने का आपने जो कहा कि वो ऑयल जो एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस है वो US ने हटाए, फ़ौरन हटाए MOU साइन करने के बाद, और वो 2 महीने के लिए उठाए, वो भी आप जानते हैं कि वो सिर्फ 60 डेज़ के लिए उठाए हैं उन्होंने सैंक्शंस, ठीक है। उसका ईरान को कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा। ये हम नहीं कह रही है, अब जो ग्लोबल इस वक्त जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ को वॉच करें, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ममालिक ने ईरान के साथ एनर्जी की तिजारत बंद कर दी थी उनको, और उन्होंने ऑल्टरनेट रिसोर्सेज ढूंढ ली थी इंपोर्ट की, ठीक है, वो ये देख रहे हैं कि ये तो शॉर्ट टर्म गैप है, 2 महीने बाद अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं, जैसा कि होता रहा है प्रीवियसली, राइट, देयर इज नो गारंटी। यही तो बात है, ट्रस्ट तो जीरो है ना, बिल्कुल ट्रस्ट जीरो। वो कह रहे हैं वो अभी तक उनके साथ कोई डील साइन करने को तैयार नहीं है। जो कुछ ईरान बेच रहा है वो लोअर प्राइस पे ऑन दैट इनफॉर्मल जो इनकी एनर्जी मार्केट है, स्पॉट मार्केट, उसमें बिक रहा है उनका, और वो आगे जाके भी यही बेचेंगे। सो उनको इस वक्त कोई टैंजिबल जिसे कहते हैं इतना ज़्यादा फ़ायदा इसका नहीं मिल रहा कि वो जो एक चीज़ उनके हाथ में आई है ना, बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 birds in the bush,
وہ ٹو ان دا بش ان کے ہاتھ میں. اور دوسری بات, یہ ڈمینشنگ ریٹرن نہیں ہے میرے خیال میں. ایران اس کو ایک کوئی فائنینشیل ویلیو کے طور پہ استعمال کرنے کو نہیں دیکھ رہا اسٹریٹ آف ہرمز. وہ ایک طرح کا ڈیٹرنس دیکھ رہا ہے اس کو لانگ ٹرم. وہ اپنا فیوچر, اپنی پیس اینڈ سیکیورٹی کو, پیس اینڈ سیکیورٹی پراسپیرٹی آف دا ہول گلف کے ساتھ باندھنا چاہ رہا ہے. وہ یہ باور کرانا چاہ رہا ہے گلف ممالک کو بھی اور دنیا کو بھی کہ ہم اگر ہم سیل کریں گے یا اگر ہم فلوٹ کریں گے تو ہم اکٹھے فلوٹ کریں گے, اور اگر ہم سنک ہوتے ہیں تو ہم اکٹھے سنک ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر ہمیں ایک طرح کا ڈیٹرنس ہے. ایک طرح کا ڈیٹرنس ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو.